Namaskar, Adab, good afternoon. I think by now all of you must have been enlightened quite a bit by our esteemed panelists. Ashok Kumar Pandey ji, Professor Sadhna ji, Supriya Sinha ji, Arun Daya ji, Saurabh Rai ji, Professor Mahmood ji, and my dear young friends. I will not take much of your time क्योंकि ये लोग जो मेरे से पहले बात किए हैं मुझे लगता है कि वो डिटेल में नेहरू जी के बारे में बताए होंगे. And you're all students of Delhi University doing your graduation, post-graduation. I'm sure you must have by now read quite a bit about Nehru ji, must have learned a lot about him. Because अभी कांग्रेस के लोगों को नेहरू जी के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर दिन इतना डिबेट में नेहरू जी को ज़िंदा कर देते हैं. तो आप लोग जो है व्हाट्सएप करके गूगल करके चेक कर लेते हैं आखिरकार ये थे कौन के जिनके इतने सालों बाद भी ये डिबेट में रहते हैं. उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी. उस ज़माने में जितना वो पॉपुलर नहीं हुए अब उनके पीछे पड़ के उतना उनको पॉपुलर करने की पॉपुलर कर रहे हैं लोग. तो आई डोंट थिंक आई नीड टू dwell a lot into this subject today. I would just like to congratulate Jawahar Bhavan and Rajiv Gandhi Study Circle for organizing this competition, for organizing this event. And I am sure these kind of events across the country would be beneficial for the students so that they understand what actually Nehru was, what did he stand for, how did he lay the foundation for a vibrant, young and modern India, and what was his thought process, and how did he contribute to the framing of our constitution, how did he lead the freedom movement, why was he chosen as the prime ministerial candidate by none less than the father of the nation, Mahatma Gandhi, why the current incumbent government at the center tries to pitch Nehru against Patel, Nehru against Subhash Chandra Bose, Nehru against Gandhi, Nehru against everyone else. Why do they keep pitching him, and why it is only Nehru pitched against everyone else? So I think these are the debates that are there, and we keep defending Nehru every day in and day out in the parliament and outside the parliament. But then we should also try and understand why is this person hated so much? Why is this person hated so much? Because जब दुनिया में इतने सारे देश आज़ाद हुए, कई देश जो हम लोग उसमें मज़हब के नाम पे आज़ाद हुए. हमारा ही देश मज़हब के नाम पे पार्टीशन हुआ. आज़ादी के बाद में एक देश जो है chose to become an Islamic Republic of Pakistan, but then we chose to become a secular nation. That was the greatest contribution of Nehru to India. That was the greatest contribution. There were so many countries who got freedom at that time. There were so many countries who were fighting for freedom at that time. And so many countries went towards dictatorship. So many countries went towards aristocracy. I think this was the person who firmly said that India needs a democracy. He said we need a democracy. A country like India can only survive if there is democracy in this country. And that democracy should be secular socialist democracy. That's what he said. It should be a welfare state. It should be a democracy for the people of this country. When even in the most developed nations of those era, westernized societies of those era didn't have adult franchise. They didn't have franchise for women. They didn't have franchise for everyone. There was no universal franchise at all at that time. Us time there was also a thought process in the country who said that franchise should be only for chosen few. टैक्स जो बनते हैं उनको दे दो, जो लोग जिसके पास ज़मीन है उनको दे दो, जो पढ़ाई करें उनको दे दो, जो मतलब जो एलीट हैं उनको दे दो. इस तरीके की थी. जब अडल्ट फ्रेंचाइज की नेहरू ने बात की, जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की उन्होंने बात की,
तो उस टाइम एक संगठन था, उस संगठन ने अपने मौत पीस में उन्होंने लिखा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा कि नेहरू जो पछताएंगे, नेहरू पछताएंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देने के लिए। एंड दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द आइडियोलॉजी विच इज़ नाउ थ्रू SIR is trying to disenfranchise many of our people in the country today. So that was the contribution of Nehru to our country. So we spoke about so many things. उस टाइम अंग्रेज़ भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अंग्रेज़ कह रहे थे कि हम लोग या तो अमेरिका के साथ चले जाएंगे या रशिया के साथ चले जाएंगे। नेहरू ने फर्मली कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग खड़े रहेंगे इन द कमिटी ऑफ नेशंस विद आवर हेड्स हाई, वी विल स्टैंड in the line, we will not go to anyone. That was how he said that we will be non-aligned. हम लोग किसी की पिछलग्गू होकर किसी के पीछे नहीं जाएंगे, कोई डेवलप्ड नेशन के पीछे भी नहीं जाएंगे, कोई शक्तिशाली नेशन के पीछे भी नहीं जाएंगे, कोई बड़े नेशन के पीछे भी हम नहीं जाएंगे। ये वही एक सोच थी जिसकी वजह से आज तक जो हम लोग नॉन अलाइंड है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी बदल गई है, एक अलग बात है। ये फॉरेन पॉलिसी में बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। अब झप्पी और पप्पी की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, अब मेलोडी की और मेलोनी की फॉरेन पॉलिसी चल रही है। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा, बट एक फैक्ट है हमारा डिविएशन हुआ है फॉरेन पॉलिसी में। हम प्रिंसिपल पोजीशन जो लेते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो आज ख़त्म हो गया। आज हम लोग जो है हम सेल्फिश गेन्स के लिए हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेल्फिश गेन्स के लिए हम जो है पॉलिटिकल पोजीशंस इंटरनेशनल फोरम्स में हम ले रहे हैं। बहुत सारे उसके एग्जांपल्स हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते में 50 आपको ऐसे हमारे स्टैंड्स दिखा सकता हूँ जिससे जो हमें लग रहा है कि हमने हमारी ओरिजिनल फॉरेन पॉलिसी जो न्यूट्रल थी, जो पार्टीजन नहीं थी, जो प्रिंसिपल्ड थी, जो हमारे अपना वक़ार बना के रखने के लिए, हमारी डिग्निटी बना के रखने के लिए दुनिया में एक फॉरेन पॉलिसी थी, उससे हट के हम कैसा डिबेट। 50 एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन आज मौजू वो नहीं है तो उसमें मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि जो हम नेहरू वॉज मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग। नेहरू ने हमेशा कहा कि हमारी सेकुलरिज्म जो है हमारी परिस्थितियों की वजह से नहीं होना चाहिए, हमारी सेकुलरिज्म हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए, हमारी सेकुलरिज्म किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए। हमारी सेकुलरिज्म जो है इसलिए होना चाहिए कि हम इन प्रिंसिपल जो है सेकुलरिज्म को हम मानते हैं। अगर कोई मजहब का एक भी बंदा है, आज कहते हैं कोई माइनॉरिटी है, कोई लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, कोई सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है, 50 चीज़ें आज डिबेट में होते हैं। नेहरू का मानना ये था एक भी बंदा किसी भी मज़हब का हो, वो अगर है उसको उसी तरह का हक मिलेगा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बंदों को लिए हक मिलता है। इक्वालिटी, वन वोट पॉलिसी फॉर एवरीवन, एगैलिटेरियन सोसाइटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी का, ये सारे जो प्रिंसिपल्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। उसमें सिंपल ये था कि हम ना तो मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म को मानेंगे ना माइनॉरिटी नेशनलिज्म को मानेंगे, हम कोई किसी एक ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को हम मानेंगे। हमारा नेशनलिज्म विल बी जो हम यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री रहेगा। और पीपल ऑफ दिस कंट्री कौन? हर एक बंदा जो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा बोलने वाले का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी ज़मींदार हो या नहीं हो, पैसे वाला या नहीं हो, पढ़ा लिखा हो, इलिटरेट हो, कुछ भी रहे, सारे लोग मिला के जो हम हिंदुस्तानी हैं, ये सम टोटल ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम विल बी आवर नेशनलिज्म। उन्होंने कहा कि हम थोपेंगे नहीं ऊपर नेशनलिज्म को, किसी मटा से, किसी मस्जिद से, किसी गुरुद्वारे से जो हम नेशनलिज्म हमारा निकलेगा नहीं। हमारा नेशनलिज्म, हमारा राष्ट्रीयता जो राष्ट्रवाद हमारा विल बी एन यूनिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम बिलो। इट विल नॉट बी एन इम्पोज्ड वन, इट विल बी एन यूनिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम बिलो, एंड दैट फ्रॉम बिलो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एवरीवन इन दिस कंट्री। तो इन्होंने हर चीज़ का इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, हर चीज़ के जो फॉरवर्ड लुकिंग सोच थी। इन्होंने हर चीज़ को बोला कि जो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इस तरह से फाउंडेशन डालेंगे, आने वाले 100, 200, 300, 400 साल में भी जो कोई भी इस फाउंडेशन को जो है हिला नहीं पाएगा। इकोनॉमी की बहुत सारे लोग आज बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग आ गए इसलिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ नेहरू नहीं रहते तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तरफ बढ़ ही नहीं सकते थे हम लोग सिर्फ उतना ही फॉलो कर रहे हैं जितना उन्होंने फाउंडेशन डाल के चला गया था, जितना वो फाउंडेशन डाल के गए। जिस तरह से एक ज़बरदस्त फाउंडेशन उन्होंने बोला कि हम मिक्स इकोनॉमी रखेंगे, हम बोले हम वेल्थ क्रिएशन भी करेंगे, हम बड़े बिजनेसेस को भी सपोर्ट करेंगे, हम बड़े बिजनेसेस को साथ भी देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जो वास्ट मासस हैं, जो गरीब जनता है, उसके लिए भी हम काम करेंगे।
मैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस का एक मेंबर हूँ। मैं 8वें साल में चौथी बार मेंबर हूँ इसका स्टैंडिंग कमेटी का। 400 करीब 400 जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, करीब 400 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं हमारे पास। आज भी जो है हम नेहरू को इसलिए याद करते हैं, हम नेहरू को याद करके आज भी हर मीटिंग में हम लड़ते हैं कि भाई ये पब्लिक सेक्टर यूनिट क्यों बंद हो रहा है। ये अगर यूनिट अगर है तो इसमें जो हम 3000 लोग को नौकरी मिल रही है, इसमें 15,000 लोग को नौकरी मिल रही है। ये 15,000 20,000 लोग को नौकरी मिल रही है, उसमें 50% रिजर्वेशन को जा रहा है, आपको जो है मार्जिनलाइज सेक्शन को प्रोटेक्शन भी उसमें मिल रहा है। इसको क्यों बंद कर रहे हैं? आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर डिसइन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कोई एक पब्लिक सेक्टर यूनिट ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपको प्रॉफिट उससे नहीं मिल रहा, तो उसको बंद करो और एक स्टार्ट करो। आप वो पैसे वहाँ से लेके जाके दूसरे चीज़ों में क्यों डालते हैं? ये देश की जनता का पैसा है, देश की जनता के लिए बनाया गया था। हमारी इकोनॉमी क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के फाउंडेशन पे खड़ी हुई है, इसलिए जिंदा है। मनमोहन सिंह जी की एक बात याद आती है। सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग जब रिसेशन चल रहा था यूपीए के ज़माने में दुनिया भर में, हम लोग सारे कांग्रेसी लगे हुए थे। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री हैं, इसीलिए जो हम लोग आज हिंदुस्तान में रिसेशन का इम्पैक्ट नहीं है, हम लोग इसको बचा के रखे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी खुद कहते थे मैं नहीं बचाया, नेहरू जी बचा रहे हैं। नेहरू जी ने जो फाउंडेशन डाल के गया, इसके लिए जो हम लोग रिसेशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ, हम लोग नेहरू जी आज बचा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, गवर्नेंस में, स्टेट पॉलिसी में, इकोनॉमी में, कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस में, सोशल जस्टिस में, साइंटिफिक टेम्परमेंट एज ए स्टेट पॉलिसी बनाने में, तो उस ज़माने में क्या था। आज भी हम बोलते हैं, आज भी हमारे दोस्तों के साथ बैठते हैं, बोलते हैं अपनी कम्युनिटी में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी कम्युनिटी में भी कोई ब्लाइंडली कोई चीज़ बोलता था, हम बोलते हैं भाई इसके पीछे रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हो ये चीज़। तो बोलते नहीं फलाने चीज़ 5,000 साल पहले हुआ था तो हम कर रहे हैं, फलाने लोग 3,000 साल पहले किए तो हम कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आज भी हम पूछते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कोई ये सवाल पूछ ही नहीं सकता था। इतना ज़्यादा जो हम ब्लाइंड फेथ था, इतना ज़्यादा जो हम लोग ब्लाइंड फेथ के पीछे भागते थे। और वो ब्लाइंड फेथ के पीछे आज भी भाग रहे हैं, इसलिए इतने बाबाएँ जो हम अपने इंडस्ट्री चला रखे हैं। तो उस समय में जो है इन्होंने ये नहीं कहा कि जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ कि ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए। नेहरू जी ने उस टाइम कहा कि वी शुड मेक इट ए स्टेट पॉलिसी, वी शुड मेक साइंटिफिक टेम्परमेंट एज ए स्टेट रिलीजन। जब भी जो हम लोग हमारा देश आगे बढ़ सकता है, जब भी हम लोग प्रॉस्पर हो सकते हैं, जब भी हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस में उनकी जो बिलीफ थी, आज इंस्टीट्यूशंस को जो उन्होंने बनाया आज बेच रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की जो बिलीफ थी, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, गवर्नर्स आएंगे चले जाएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस खड़े रहेंगे। प्लानिंग कमीशन, IIMs, IITs, मतलब आप लंबी लिस्ट दे सकते हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़ा करके गया। उसके बाद के सारे प्रधानमंत्री मिलके, उनके बाद के सारे प्रधानमंत्री मिलके, सारे सरकारें मिलके उतने इंस्टीट्यूशन नहीं बने जो एक आदमी बना के चले गए। तो आज उस आदमी को जो है बार बार आप जो इन्वोक करते हैं, बार बार उनको जिंदा करते हैं, बार बार उनको कोसते हैं। आजकल जो हम प्रधानमंत्री का भाषण 1.5 घंटे का होता तो 1 घंटे जो हम लोग नेहरू के ऊपर बोलते हैं। 50 टाइम एक भाषण में उनका नाम लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है कोई आदमी उनके खत के बराबर रीच नहीं हो सकता, उनके खत के बराबर ग्रो नहीं हो सकता, तो उनको एनवी करना लगता है। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं विश्वगुरु। तो हमारे परसों कोई एक पता नहीं किस चीज़ के ऊपर बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, राजीव शुक्ला जी थे, तो बोले यार विश्वगुरु 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 बोल रहे हैं, गुरु के चेले ही नहीं है, विश्वगुरु कहाँ से बन बैठे हैं। एक भी देश इनका चेला नहीं है, सिंदूर के टाइम पे एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। वर्ल्ड में जो स्टैंडिंग थी नेहरू की और हिंदुस्तान में उनकी जो पूजा की जाती थी, इसको जो हम सरपास करने की कोई कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लग सकता कोई आने वाले 100, 200, 400 साल तक भी उनको और उनके काम को, उनके कंट्रीब्यूशन को सरपास कर पाएगा। उनको कोसने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। मैं आपको जो है टाइम होता तो इतने कोटेशंस आपको मैं देता जो सरदार पटेल और नेहरू को जो झगड़ा करवाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के बारे में कहा था,
सुभाष चंद्र बोस किस तरह से नेहरू जी के काम को सराहते थे, महात्मा गांधी क्यों उनको जो है ही विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री करके क्यों उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर चूज किए थे। इतने इंस्टेंसेस, इतने लेटर्स और इतने स्टेटमेंट्स हैं तो जिससे ये एकदम साफ कहते हैं कि उस टाइम पे जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, सबसे फॉरवर्ड लुकिंग, सबसे मॉडर्न विद साइंटिफिक एम्पावरमेंट जो हिंदुस्तान का एक ज़बरदस्त फाउंडेशन डाल सकते थे तो वो नेहरू थे, इसीलिए ही वाज चोजन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एज प्रोफेसर महमूद सेड, he is not icon only for Congress party. I am a congressman, that's a different thing. He is not an icon for only Congress party. He is the icon, he is the father of modern India. He is the leader and the prime minister who has to be respected, who has to be studied, who has to be followed by every countryman irrespective of what ideology he or she belongs to. That is the reason why certain people who cannot emulate him will envy him. Let them envy, but Nehru's legacy will live on, and we all should protect its legacy, propagate his legacy, and we should all learn from him, and we should all see to it that his vision is materialized, his vision is lived by all of us. Thank you so much.